back, viewers. We are here with a new video. In this video we are going to learn about the components and their sources. In the previous video we have learned about these components of government budget. So sources were left. In this video we will see about the sources of government budget, that what are the sources of the government budget and how the different components of government budget is collecting their or distributing their expenditure through their different type of sources. So now here we are with the budgetary receipts. So budgetary receipts are of two types, as already discussed in the previous video. Revenue receipts or capital receipts. Revenue receipts, the sources of revenue receipts are tax sources and non-tax sources. Either the government can control or government can get the revenue through the tax sources. In tax sources we are having two types of taxes, that are direct tax and indirect tax. So for a basic example or a basic differentiation, we can say that the tax which can be shifted, the liability or burden of the tax which can be shifted to other person is known as indirect tax, and the liability of the tax which is not shifted to any other person is known as the direct tax. For example, income tax, then wealth tax, then property tax, etc. are the examples of your direct tax. For indirect tax, the best example is your GST. So basically we can understand that GST can be transferred to the person who is purchasing that particular commodity. Those who will purchase the commodity, they will have to pay the GST. So it is transferable. Maybe sometimes it happens that a person is purchasing the commodity but he is not the final user of that particular commodity. Okay. So then there is, after tax sources, there are non-tax sources. In non-tax sources there are several items like fees, fines, penalties, license fees, sheets, commercial revenues, interest, dividend, profit, etc. etc. Fees, fine, penalty, I think are the things you already know, that अगर आप गाड़ी चला रहे हैं बिना हेलमेट के तो आपसे पेनल्टी चार्ज की जाती है. फीस गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह में जो है, या फिर और भी गवर्नमेंट, अगर आपका कोई भी काम है तो गवर्नमेंट इज चार्जिंग और टेकिंग यू द फीस. उसके अलावा the license fees, if you are taking the license you have to pay the license fees. Then a sheet थोड़ा अलग है. A sheet में क्या होता है, if suppose anyone is having any property and there is no legal heir of that particular property, मतलब उनका कोई वारिस नहीं है, लीगल वारिस नहीं है, तो उस केस में वैसी प्रॉपर्टीज को सरकार जब्त कर लेती है ए शीट के अंदर में. तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाता है, एक नॉन टैक्स सोर्स है रेवेन्यू का या रिसिप्ट्स का. उसके बाद फिर आता है आपका कॉमर्शियल रेवेन्यू, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज करने पे जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो, प्लस इंटरेस्ट. गवर्नमेंट की कई सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग जगहों पे वर्क कर रही हैं, तो गवर्नमेंट इज अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम दैट. गवर्नमेंट इन्वेस्ट द मनी, so government is earning dividend also. So these all type of activities are of non-tax sources. So basically there are two types of sources in case of revenue receipts. One is tax sources, other one is non-tax sources. एक tax sources है जो टैक्स के माध्यम से मिलता हो, नॉन टैक्स सोर्सेस वो होते हैं जो टैक्स के माध्यम के अलावा मिलता हो. बट आपको याद रखना होगा, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि रिसिप्ट्स के केस में क्या होता है, या फिर एसेट्स डिक्रीज होता है या लायबिलिटीज बढ़ती है. बट रेवेन्यू रिसिप्ट्स के केस में दोनों नहीं होता है, मतलब नाइदर एसेट्स डिक्रीजेस नॉर लायबिलिटीज, नाइदर एसेट्स डिक्रीजेस नॉर लायबिलिटीज इंक्रीजेस. फिर भी एक रेवेन्यू आपको मिल रहा है, रिसिप्ट्स मिल रही है गवर्नमेंट को, तो ये उसके सोर्सेस हो गए. यही इसी हम लोग फिर वी आर गोइंग नेक्स्ट टुवर्ड्स दी कैपिटल रिसिप्ट्स. कैपिटल रिसिप्ट्स के 2-3 सोर्सेस मैंने लिखे हुए हैं, और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. पहला सोर्स है आपका बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज. सबसे बड़ा सोर्स जो कैपिटल रिसिप्ट्स का होता है वो क्या होता है, सरकार क्या करती है, बोरोविंग करती है. बोरोविंग के केस में क्या होता है, सरकार एक पर्टिकुलर अमाउंट बोरो करती है. किसको बोरो करी, या फिर वो IMF से करे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब से कर ले, या फिर किसी अदर कंट्री से भी कर सकती है. फिर है रिकवरी ऑफ लोन्स. अगर आपने किसी को पहले, आप मतलब गवर्नमेंट हैज गिवन लोन टू एनी अदर कंट्री, देन इन केस ऑफ दैट टाइम
गवर्नमेंट के रिकवर दी लोन, मतलब अपना पैसा वापस ले सकती है, उसको मिलेगा एक समय के बाद, लोन है तो फिक्स पीरियड होगा। और डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लायक चीज है। इट इज दी सिंपली अगर हम कहना चाहें तो इट इज दी सेल ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर। जो भी सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो बीमार हो चुके हैं, उन यूनिट्स को हम प्राइवेट सेक्टर को अगर बेच देते हैं तो उन्हें ही डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उसमें हमको प्रोडक्टिव यूज हो और उससे हमको पैसा मिले। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जहां पे हम अपनी बनी बनाई इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर रहे हो। सिंपल लॉजिक समझना हो तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स के कुछ सोर्सेस, आपको पहले ही याद होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैपिटल रिसिप्ट्स के जो भी सोर्सेस होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, लार्ज अमाउंट के होते हैं, इरेगुलर बेसिस पे होते हैं, और कभी कदार वैसे सोर्सेस को गवर्नमेंट यूज करती है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ हमने देखा है नाइदर एसेट्स डिक्रीजेस नॉर लायबिलिटी इंक्रीजेस। सो इन केस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स आइदर एसेट्स डिक्रीज होगा या लायबिलिटीज बढ़ेगी। ठीक है, ये सब प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया है, तो इसलिए उस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, हम केवल सोर्सेस पे ही यहाँ पे बात करेंगे। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन केस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर कब होता है या एक्सपेंडिचर से क्या होता है, तो हमारे पास मैंने पहले ही बताया था आपको, एक्सपेंडिचर से दो चीजें होती हैं, आइदर एसेट्स इंक्रीज करता है या लायबिलिटीज डिक्रीज करती है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से दोनों में से कुछ नहीं होता, नाइदर एसेट्स डिक्रीजेस नॉर लायबिलिटी इंक्रीजेस, बट स्टिल द गवर्नमेंट हैज टू इनकर लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कहाँ खर्च हो रहा है, जहाँ ना कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है ना लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, फिर भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है, मतलब करना पड़ता है लायबिलिटी उसकी। इंटरेस्ट पेमेंट, अगर आपने यहाँ लोन लिया हुआ है, बोरोइंग किया है, कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर में बोरोइंग किया है ना यहाँ सब है, तो इस पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बिना इंटरेस्ट के आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में कि रेवेन्यू इंटरेस्ट पेमेंट किसके अंदर में आएगा, तो बच्चे कई बार उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लोन जो है उसका रीपेमेंट कर रहे हैं, तो लोन का रीपेमेंट तो है, यहाँ लिखा है रीपेमेंट ऑफ लोन, ये तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तय बात है, क्योंकि लार्ज अमाउंट होता है, कभी कदार होता है। पर इंटरेस्ट जो उस लोन पे दिया जा रहा है वो रेगुलरली हर साल दिया जाता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इंटरेस्ट पेमेंट इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर इसमें सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गया, सब्सिडीज हो गया, स्कॉलरशिप्स जो सरकार आपको दे रही है, वो सब इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिससे कि ना कि कोई एसेट क्रिएट होता है, ना ही कोई लायबिलिटीज हमारी कम हो जाती है, मतलब ना ही कोई एसेट्स क्रिएशन नॉर लायबिलिटीज का रिडक्शन होता है। आखिरी हमारा इस सोर्सेस वाले टॉपिक में है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के सोर्सेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कहाँ करती है, तो आपको मालूम होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से या फिर एसेट्स आपके इंक्रीज होंगे या लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी। तो एसेट्स इंक्रीज होने के लिए हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी ऑफ एनी काइंड ऑफ, आइदर इट इज ऑफ दो तरीके होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स। एक तो हो गया आपका सोशल, जिसमें स्कूल, बिल्ड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, ये सब हो गए। एक हो गया इकोनॉमिक, जिसमें इंडस्ट्री खोलना और कनेक्टिविटीज को बनाना। तो दोनों टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्रिएशन होता है वो आता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में ही आता है, जिससे कि क्या होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आपका एसेट्स जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे लायबिलिटीज कम होता है रीपेमेंट ऑफ लोन के करने से। आपने लोन पहले लिया था, हमको जरूरत थी तो हमने लोन ली थी, हमने मतलब गवर्नमेंट ने, और हमारा काम हो गया तो हमने रीपेमेंट कर दिया। रीपेमेंट करेंगे तो लोन लिया भी था ह्यूज अमाउंट, इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट्स में था, यहाँ ना बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। अब लोन दिया भी है तो वो भी ह्यूज अमाउंट का होगा, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाता है, क्योंकि लोन लेना और देना रोज का काम नहीं है। ठीक है, बहुत डिटेल में अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स बारे में जानना हो तो प्रीवियस वीडियो मेरा है, इस पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इन सब चीज़ों को। यहाँ केवल हमने सोर्सेस को देखा है, सो दीज आर दी सोर्सेस। सो वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक ऑन दी नेक्स्ट वीडियो।